Good morning to all my students of class 10th. Now today we will discuss the remaining question of your last chapter. As you know that in the last chapter which is circle is going on, and in this chapter only 5 question is remaining in your term 2 syllabus. Question number 4, question number 5, and then question number 10, 12 and 13. So these 5 question is remaining in your term 2 syllabus, and which will be discussed today in this video. Now we will start from the question number 10. Question number 10, page number 214, page number 214, and question number 10. In question number 10, prove that the angle between the two tangents drawn from external point to a circle is supplementary to the angle subtended by the line segment joining the point of contact to the at the center. जरा क्वेश्चन को ध्यान समझ के, क्वेश्चन में जो कहना चाह रहे हैं वो ये कहना चाह रहे हैं कि जब आप सर्कल पर किसी आउटसाइडर पॉइंट से अ पेयर ऑफ टेंजेंट बनाएंगे तो तब वो आउटसाइड पॉइंट और सर्कल का सेंटर दोनों पर जो एंगल बनता है उसका सम सप्लीमेंट्री होता है. हमें ये बात प्रूव करनी है. पहले फिगर बनाते हैं जरा आइए. इट इज अ सर्कल. अब इस सर्कल पर किसी आउटसाइड पॉइंट से, दिस इज सेंटर, दिस इज पॉइंट, सो वी हैव अ टेंजेंट लाइक दिस एंड दिस. ठीक है. सपोज पॉइंट इज ए, सेंटर इज ओ. अब सेंटर ओ को आप पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जहां पर दोनों टेंजेंट ने सर्कल को टच किया है, दिस इज. सो वी हैव टू प्रूव दैट द एंगल PAB, एंगल PAB प्लस एंगल POB is equals to 180. According to the question, we have to prove that angle PAB plus angle POB is equals to 180. And the given is a circle outside point A, a pair of tangent AP and AB. And we have to prove that the angle PAB plus POB is equals to 180. So first of all, given a circle with center O, a circle with center O and having a pair of tangent and having a pair of tangent from point A. हमारे पास एक सर्कल है, उस सर्कल का सेंटर O है, बाहर एक पॉइंट A है जहां से एक पेयर AP एंड AB जनरेट हुआ है. ठीक है. अब हमें ये प्रूव करना है कि एंगल PAB प्लस POB इज अ सप्लीमेंट्री. सप्लीमेंट्री मीन्स 180. टू प्रूव एंगल PAB प्लस एंगल POB is equals to 180. Proof. प्रूफ में हम लिखेंगे we know that APOB
is a quadrilateral, and the property of quadrilateral is that sum of all angles is always a 360, but out of 360 the sum of two angles at the 2 point of contact at point P at point B, because according to the rule tangent is always perpendicular to the radius. It means OP as well as OB both are perpendicular to the tangent AP and AB. So these two angles at the point of contact is a right angle. So sum of these two angles at the point of contact is always 180, and out of 360 two angles sum is 180, so remaining two angle is obviously 180. दोबारा फिर सुनिए ध्यान से, आप पिक्चर में देख भी रहे हैं कि APOB इज अ क्वाड्रिलेटरल, and by the property of quadrilateral the sum of all angles of a quadrilateral is always a 360, but at the point of contact P and B these are right angle. It means we can write that angle APO as well as angle ABO is a right angle. So sum of these two angles at the point of contact P and B is 180. So out of 360 the sum of these two angles at point P and B is 180. So sum of remaining two angle means PAB and POB is 180. क्लियर? तो चलिए इसी बात को लिख देते हैं फटाफट। हम लिखेंगे यहाँ पे AP and AB is a pair of tangent. This implies OP is perpendicular to AP and OB is perpendicular to AB. This implies angle APO plus angle ABO is equals to 180. This is first. फिर हम लिखेंगे यहाँ पे but APOB is a quadrilateral. This implies sum of angle A. एंगल A को हम लिख देते हैं फिलहाल PAB प्लस POB प्लस APO प्लस ABO इज इक्वल्स टू 360। तो भाई इस तरह से हम ये बात लिख सकते हैं कि इस क्वाड्रिलेटरल के जो 4 एंगल्स हैं, इन 4 एंगल्स का सम 360 हो जाएगा, ठीक है। बट आउट ऑफ दीज 4 सम ऑफ 2 एंगल मींस APO प्लस ABO is 180. So we can write here angle PAB plus angle POB plus 180 is equals to 360. Now transfer 180 from left to right and we have angle PAB plus angle POB is equals to 360 minus 180, result is 180, hence proved। सो इस तरह से हमने इस स्टेटमेंट को प्रूव कर दिया है। तो जल्दी से लीजिए स्क्रीनशॉट, फिर आगे चलना है और डिस्कस करेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन।
Now question number 12 is on your screen. You can see. According to question number 12, we have a triangle ABC in such a way that it is a circumscribing a circle. सर्कल के बाहर टच करते हुए एक ट्रायंगल ABC बनाया गया है, आप देख सकते हैं। और यहाँ पे हमें इस ट्रायंगल ABC की साइड AB और साइड AC को निकालना है। हमें AB मालूम नहीं है, हमें AC भी मालूम नहीं है। सो वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ AB एज वेल एज AC, बट इट इज गिवन that segment BD and segment CD is 8 centimeter and 6 centimeter. Segment BD is 8 centimeter, segment CD is 6 centimeter, and the radius of the circle is 4 centimeter. क्लियर? तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक काम कर लेते हैं कि सर्कल की साइड AB वो टच कर रही है सर्कल को, सपोज E पॉइंट पर। साइड AC वो टच कर रही है इस सर्कल को, सपोज पॉइंट F पर। ये हम मान लेते हैं, ठीक है। इट मींस ABC इस ट्रायंगल की तीनों साइड सर्कल को टच कर रही है पॉइंट E, D और F पर। क्लियर है? इसके बाद चलिए आगे। इसके बाद में हमें AB निकालना है, साइड AB एंड साइड AC, AB एज वेल एज साइड AC दोनों हमें निकालनी है, ठीक है। अब ध्यान से देखिए पॉइंट A के लिए, पॉइंट A के लिए A से AE, A से AF मींस AE and AF both are a pair of tangent. So length of AE is equals to length of AF. जितना A से E है मींस AE उतना ही AF होगा। क्लियर? उसके बाद ध्यान से देखिए आप पॉइंट B के लिए, जितना B से D है मींस BD उतना ही BE होगा। अब बात करता हूँ पॉइंट C के लिए, तो जितना C से D है उतना ही C से F होगा मींस CD एंड CF बोथ आर इक्वल। क्लियर? अब जरा ध्यान से देखिए पॉइंट A, पॉइंट B और पॉइंट C को। पॉइंट A से एक पेयर गया है AE और AF, दोनों की लेंथ बराबर होगी। फिर पॉइंट B से गया है एक पेयर BE और BD, इनकी लेंथ बराबर होगी। पॉइंट C से गया है एक पेयर CF और CD, उनकी लेंथ बराबर होगी। बट CD इज 6, so CF is also 6। क्लियर? इसके बाद so length of BD and length of BE both will be equal to each other। अब देखो हमें लेंथ सभी की मिल गई, सिर्फ हमारे पास क्या रह गया, A से E तक और A से F तक। तो उसको हम X एज्यूम कर लेते हैं क्योंकि ये दोनों के दोनों अपने आप में इक्वल टेंजेंट हैं। सो इट विल बी सपोज X, उनको हमने X एज्यूम कर लिया। चलिए इतना कुछ करने के बाद अब जरा ध्यान से देखिए कि हम कैसे निकालेंगे। देखो हमें लेंथ निकालनी है AB और AC की। लेंथ ऑफ AB और लेंथ ऑफ AC दोनों हम निकाल लेंगे यदि हमें X मिल जाए, बिकॉज लेंथ ऑफ AB इज X प्लस 8 एंड लेंथ ऑफ AC इज X प्लस 6। क्लियर? सो X is main term, so we have to find out the value of X। clear? Now in this figure we will find out the area of triangle ABC with the help of two methods। First of all we have to use here Heron formula to find the value of this triangle, because sides are x plus 8, x plus 6 and 14. We have the measurement of three sides, x plus 6, x plus 8 and 14.
So by using Heron formula we can find the value of this triangle. Clear? हम इस ट्रायंगल का एरिया दो बार निकालेंगे, दो अलग अलग मेथड से। उन दोनों को हम बराबर रख देंगे क्योंकि एरिया तो एक ही होगा, मेथड कोई भी यूज करे, लेकिन फिलहाल ये एक्स में लेके चल रहे हैं तो इनका आंसर अलग अलग आएगा। हेरोन फॉर्मूले से एरिया कुछ और आएगा और जो हम मेथड यूज करेंगे अनदर मेथड, उससे कुछ और आएगा। वो मेथड क्या होगा, अनदर मेथड, वो सुन लीजिए। यहाँ पे जरा ध्यान से देखो आप, ये जो ए ई ओ है, हम क्या करेंगे, इस ओ को इस ट्रायंगल की तीनों वर्टेक्स से ज्वाइन कर देंगे। मींस हम ए को ओ से, फिर ओ को बी से, ओ को सी से ज्वाइन कर देंगे। क्लियर? तो इस तरह से आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे कुछ ट्रायंगल बन गए हैं। ट्रायंगल ए ई ओ, ट्रायंगल ए एफ ओ, ट्रायंगल बी डी ओ, ट्रायंगल ओ बी ई, ट्रायंगल ओ सी डी, ट्रायंगल ओ डी एफ। ठीक है, तो कुल मिलाकर के हमारे पास में 6 ट्रायंगल बन गए हैं। इन 6 ट्रायंगल का निकाल के एरिया प्लस कर देंगे तो वो रिप्रेजेंट करेगा इस कंप्लीट ट्रायंगल एबीसी के एरिया को। तो हम इस ट्रायंगल एबीसी का एरिया दो बार निकालेंगे, एक बार हेरोन फार्मूला की हेल्प से और एक बार इन 6 ट्रायंगल का निकाल के एरिया जब प्लस करेंगे तो कंप्लीट ट्रायंगल एबीसी का एरिया आ जाएगा। क्लियर? तो इस तरह से हम दो अलग अलग मेथड में इन दोनों ट्रायंगल का एरिया कैलकुलेट करेंगे। तो चलिए निकालते हैं हम ट्रायंगल एबीसी का एरिया विद द हेल्प ऑफ 2 मेथड। From first method means Heron's formula। अब ध्यान से देखिए, मेजरमेंट ऑफ ए बी, मेजरमेंट ऑफ ए बी इज x plus 8, मेजरमेंट ऑफ ए सी is x plus 6, मेजरमेंट ऑफ बी सी 8 plus 6 14 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले निकालेंगे स्मॉल एस। वो क्या होता है कि ट्रायंगल की सभी साइड का सम करें, तो ट्रायंगल की सभी साइड का सम कितना आ जाएगा, x plus 8 plus x plus 6 और 14 upon 2। रिजल्ट इज 2x plus 8 6 14 14 14 28 upon 2. So we have x plus 14. This is the required value of s. After finding the value of s, we will use that is equals to under root s into s minus a, s minus b, s minus c. Now replace the value of s as well as abc, which are the sides of this triangle AB, AC and BC. S is x plus 14, x plus 14 minus a, a means side of the triangle। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, सुने ध्यान से, ये जो ABC है मैं AB को मान रहा हूँ A, AC को मान रहा हूँ B और BC को मान रहा हूँ C। मीन्स इन ABC को यहाँ पे रखता हूँ। सो A is x plus 8, लेकिन उससे पहले माइनस साइन है तो वो बन जाएगा माइनस एक्स माइनस 8। क्लियर? s minus b, s is x plus 14 minus b, b is x plus 6 which will be x minus 6 क्योंकि यहाँ पे बाई b से पहले माइनस साइन है, so all term will be negative। Now last term is s minus c, s is x plus 14 minus c, c is last which is 14, so we have under root x plus 14 into
यहाँ से कितना बचेगा, x से x कैंसिल हो जाएगा, 14 माइनस 8 रिजल्ट इज 6, x से x कैंसिल, 14 माइनस 6 रिजल्ट इज 8, and last term which will be only x because 14 से 14 cancel हो जाएगा, so we have only x, so this is 48x into x plus 14, so this is the value of del। ठीक है, इसको आप याद रखेंगे क्योंकि इसको हम बाद में यूज करेंगे। अब फटाफट निकालते हैं इन सभी ट्रायंगल का एरिया, तो जरा जल्दी से आइए, AOE में OE बनेगा परपेंडिकुलर मींस हाइट, इन सभी ट्रायंगल में जो हाइट होगी वो सर्कल की रेडियस होगी। जैसा कि आप देख सकते हैं इस ट्रायंगल में OE वो बनेगी हाइट, इस ट्रायंगल में OF बनेगी हाइट, उसके बाद ट्रायंगल COF में OF बनेगी हाइट। ठीक है, सुन आ रहा है कुछ? इसमें दो तरीके हैं, एक तरीका तो ये है कि आप 6 ट्रायंगल का एरिया निकाल लीजिए कि हमारे पास 6 ट्रायंगल बन गए, 1 2 3 4 5 6, या फिर इसमें एक रास्ता और भी है कि हम 6 ट्रायंगल का एरिया न निकाल करके हम निकाल लें सिर्फ 3 ट्रायंगल का एरिया। कैसे, जरा ध्यान से देखिए, AOB ये ट्रायंगल, उसके बाद BOC ये ट्रायंगल, और उसके बाद AOC। ठीक है, तो कैसे भी निकाल लीजिए, रास्ते सारे के सारे सही हैं, या तो आप 6 ट्रायंगल के निकाल के तब ऐड कर दो, या फिर 6 को आप 3 ट्रायंगल में कन्वर्ट करके उन 3 का एरिया निकाल लो, बात वही की वही है। जब निकालेंगे ट्रायंगल AOB का एरिया, then OE which is a radius of this circle which is 4 centimeter, it will be height of this triangle. Whenever we want to calculate the area of AOC, then OF which is the radius of the circle which is the 4 centimeter, it will be the height of this triangle. Whenever we want to calculate the area of BOC triangle, then OD will be the height of this triangle which is 4 centimeter as well as radius of this circle also. So इस तरह से आप कर सकते हैं। Now second method, from second method, del is equals to area of triangle AOB plus area of triangle AOC plus area of triangle BOC। क्लियर? चलिए आगे। Now area of triangle AOB, it will be 1/2 base, base is AB, into height, height is OE, plus area of triangle AOC, AOC base will be AC, height will be OF, so 1/2 base is AC and height is OF, plus area of triangle BOC, height is OD and base is BC, so 1/2 base into height, height is OD। चलिए आगे, so 1/2 AB x plus 8 into OE 4, AC which is x plus 6 and OF which is 4, 1/2 BC, it is 14 and height is 4। क्लियर? समझ में आ गया सभी को? चलिए, मुझे इससे आगे बोर्ड रफ करना पड़ेगा, तो जल्दी से आप लीजिए स्क्रीनशॉट और फिर आगे चलते हैं, डिस्कस करेंगे हम और क्वेश्चंस।
जो कि इसमें आगे अभी थोड़ा सा रहा हुआ है, ठीक है। चलिए अब देखो यहाँ पे 2 to the 4, 2 to the 4, 2 to the 4 ये सब कट जाएंगे, एंड वी हैव that is equals to 2 time of x plus 8 plus 2 time of x plus 6 plus 14 to the 28, 14 into 2 28। इसको सिंपलीफाई कीजिए, 2x plus 2x it will be 4x, 16 and 12, 16 and 12 will be 28, 28 plus 28 56, यहाँ से 4 कॉमन ले लीजिए, so we have x plus 14। So with the help of Heron formula, area is this, and by using this another method, area is this, but the area of triangle will be equal। So we can write now इक्वल्स टू, देखो जितना एरिया आया है हेरोन फॉर्मूले से उसको, और जितना एरिया आया है बाई पार्ट कि ट्रायंगल AOB प्लस ट्रायंगल BOC प्लस ट्रायंगल COA, उसको जब हमने प्लस किया तब एरिया आ रहा है, ठीक है। तो ये एरिया इक्वल्स टू होगा हेरोन फॉर्मूला से आने वाले एरिया के। सो 48x और x प्लस 14, ठीक है। अब हमें तो x निकालना है क्योंकि मेन फाइटिंग चल रही है x के लिए, ठीक है। सो x निकालने के लिए करना पड़ेगा स्क्वायरिंग ऑन दी बोथ साइड। नाउ स्क्वायरिंग ऑन दी बोथ साइड एंड वी हैव स्क्वायरिंग ऑन दी बोथ साइड। So 4 बनेगा 16 स्क्वायर ऑफ x प्लस 14 इज इक्वल्स टू 48x x प्लस 14। 16 से कट जाएगा 48x 3x टाइम, x प्लस 14 से x प्लस 14 कट जाएगा, क्योंकि यहाँ पे पावर 2 है यहाँ पावर 1 है, तो एक पावर कैंसिल हो जाएगी, एक बचेगी लेफ्ट हैंड साइड में। So we have x plus 14 is equals to 3x। Clear? x ट्रांसफर कीजिए आप लेफ्ट टू राइट एंड we have 3x minus x, result is 2x। So value of 2x is 14, so we can write value of x is 14 upon 2, result is just 7 centimeter। Clear? तो x फाइंड करने के बाद हम साइड्स AB एज वेल एज AC को फाइंड कर सकते हैं। सो मेजरमेंट ऑफ साइड AB इज x plus 8 and which will be, after putting the value of x, it will be 7 plus 8, result is 15 centimeter, and value of side, which is the last side of triangle ABC, it will be x plus 6 is equals to 7 plus 6, result is 13 centimeter। So x निकालने के बाद हमने इस ट्रायंगल की जो रिमेनिंग साइड्स थी उनको भी फाइंड कर लिया है, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 10 एंड क्वेश्चन नंबर 12 फिनिश हो चुका है। अब आपके यहाँ बचते हैं केवल ये 3 क्वेश्चन 4, 5 एंड क्वेश्चन नंबर 13, जिनको हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाकी आप तैयारी करते रहें घर बैठ करके अपने प्री बोर्ड की, और इफ़ यू हैव एनी क्वेरी एनी क्वेश्चन देन प्लीज शेयर योर प्रॉब्लम विद मी, ठीक है। सो डू योर हार्ड वर्क सिंसियरली।